Good morning, students. Today we'll discuss in this lecture of WT1 about the various operations which can be performed on a drilling machine. In the previous lectures we have discussed about the drilling operation, so we are just revising it. So it is defined as the process of producing holes of required diameter with the help of a multi-point cutting tool which is known as drill. This drill has two types of motions. The first one is it is rotating at certain RPM, at fixed RPM, which is called the rotary motion of the tool, and we are also giving drill feed motion to create the holes in the workpiece of the required depth. So we have already discussed it. Now in this lecture we will discuss now what are the various operations which are performed on a drilling machine. So the list is in front of you. I am just reading it. First one is the drilling operation. Second one is spot facing, then reaming, boring, counter boring, counter sinking, hole milling, tapping, grinding, trepanning, buffing, core drilling and step drilling. So we will discuss each of them in detail. First we will take the drilling operation. So drilling is the very first operation. So I have already discussed that it is the process of producing holes of the required diameter in the workpiece. So the figure is in front of you. Here are the two elements shown. First one is the workpiece, which is fixed on the machine table and it has no movements. It should be firmly held on the machine table directly with the help of bolts or with the help of vices. Now second one is the second element in this picture is the tool, which is known as the drill. So two types of motions. First one is the rotary motion and this one is the linear movement of the tool. So two motions are provided. First one is rotary and second one is the feed motion to the tool. So this is the process of producing the holes in a fixed workpiece of the required diameter with the help of a multi-point cutting tool which is called drill. Now the second operation is spot facing. As you can see, this is the first figure. There is a drilled hole, this one of required diameter, and we are using a spot facing tool. This is just like the boring tool. We are just producing a seat at the end of the already drilled hole. Okay, so spot facing is the operation of producing a flat round surface, usually around a already drilled hole, to give a good bearing surface for the screw. For example, if we want to fit a screw, so the head of the screw should not प्रोट्यूड आउटसाइड, किसी को बाहर मतलब किसी कोई मैटिंग पार्ट के साथ फिट कर रहे हैं इस पार्ट को, तो उसके साथ इंटरफ्रेंस नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए. उसकी सीट जो उसका हेड है स्क्रू का इस सीट में बैठ जाएगा, ठीक है ना, ताकि मैटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए. नाउ थर्ड ऑपरेशन इज रीमिंग. So reaming is basically the process of finishing and making the holes of proper size, सही साइज का बना पाए हम, एक्यूरेट साइज यू कैन से, ठीक है. तो इसमें हम जो टूल यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रीमर. दिस इज़ द रीमर टूल एंड द डिफरेंस बिटवीन द ड्रिल एंड द रीमर इज़ दैट द रीमर हैज़ स्ट्रेट फ्लूइड्स. इस तरह के मल्टी पॉइंट फ्लूइड्स
ड्रिल के ऊपर स्पाइरल फ्लूइड्स होते हैं, देखिए यहाँ पर स्पाइरल फ्लूइड्स हैं और यहाँ पर स्ट्रेट फ्लूइड्स हैं, ठीक है ना। तो रिमिंग बेसिकली हम जो हमने हॉल ऑलरेडी प्रोड्यूस किए हुए हैं से 10 mm का, इसको हम 10 पॉइंट से 2 mm का बना देंगे रीमिंग करने के बाद। बट द कंडीशन ये होगी कि इसमें हमारा जो होल का इंटरनल सरफेस होगा एक तो एक्यूरेट होगा और एक परफेक्ट सिलेंड्रिकल शेप का बनाएंगे, परफेक्ट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बनाएंगे, ठीक है ना। और उसकी हम फिनिशिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं एंड द टूल यूज्ड इन केस ऑफ रीमिंग इज नोन एज रीमर। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज बोरिंग। सो boring is basically an hole enlarging process, मीन्स हमने एक होल प्रोड्यूस किया हुआ है, से फिगर में हमने 16 mm डायमीटर का होल प्रोड्यूस किया हुआ है और हम इसको डायमीटर इसका डबल करना चाह रहे हैं, से 32 mm डायमीटर होल करना चाह रहे हैं। तो वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर नॉट यूजिंग ड्रिल ऑफ 32 mm डायमीटर बट वी आर यूजिंग ए बोरिंग टूल। बोरिंग टूल के ऊपर हम एक ये सिंगल पॉइंट बोरिंग टिप फिट कर इसको एक रिक्वायर्ड आरपीएम पे रोटेट कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इससे हमारा पर्पज़ ये है कि एक तो हमें ड्रिल 32 mm डायमीटर का यूज़ नहीं करना पड़ा और हमारा होल का डायमीटर भी इम्प्रूव हो गया है, मीन्स ज़्यादा हो गया है। 16 mm से हमने 32 mm डायमीटर का होल प्रोड्यूस कर लिया है, तो इससे हमारी कॉस्ट भी बच जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रोसेस को मीन्स बोरिंग इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एन ऑलरेडी ड्रिल्ड होल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए बोरिंग टूल। द फिगर इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग देखिए हमारा स्पोर्ट फेसिंग हमने सेकंड नंबर पर डिस्कस किया, सेम वैसा ही ऑपरेशन है। तो इसमें हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं काउंटर बोरिंग टूल, और इसका जो पर्पज़ है कि ये जो हमने सीट बनाई है, ये वाली सीट, ड्रिल्ड होल हमारा 10 mm डायमीटर था, बट कुछ डेप्थ के लिए हमने इसका डायमीटर एट द एंड ऑफ द होल हमने 15 mm बना दिया, ताकि इसमें हमारी बोल्ट या स्क्रू की हेड आराम से बैठ सके, उसके लिए सीट बना दी है, ठीक है ना, ताकि वो किसी दूसरे असेंबल्ड पार्ट में जब ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे तो प्रॉपरली उनकी असेंबलिंग हो जाए, कोई इंटरफेरेंस कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं काउंटर बोरिंग। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ काउंटर सिंकिंग। ये भी हमारा काउंटर बोरिंग की तरह ही है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इन दिस केस वी आर प्रोड्यूसिंग ए कोनिकल एंड सीट, कोनिकल शेप्ड सीट बनाते हैं होल के एंड पे, जैसा आप देख सकते हैं। और इसमें हमारा जो टूल यूज़ हो रहा है दैट इज़ काउंटर संक टूल। तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द ऑपरेशन यूज फॉर एनलार्जिंग द एंड ऑफ ए होल टू गिव इट ए कोनिकल शेप। व्हाट शेप? कोनिकल शेप फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, ताकि इसमें हमारी जो स्क्रूज हैं जिनका हेड हमारा कोनिकल शेप का होता है वो इसमें आराम से बैठ सके, ताकि कोई मैटिंग पार्ट के साथ इसको यूज़ करें तो उसमें कोई इंटरफेरेंस प्रोड्यूस ना हो। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा होल मिलिंग। होल मिलिंग बेसिकली हमारा एंड मिल से, एंड मिल यानी कि मिलिंग पे जो कटर यूज़ करते हैं एंड टाइप का, उसको एंड मिल कटर बोलते हैं, और इसको हम ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में फिट कर लेते हैं, ठीक है। और होल मिलिंग ऑपरेशन कैन बी डन ऑन अ ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन पे भी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें हम इंटरनल होल जो प्रोड्यूस किए हुए हैं हमने, उसके इंटरनल सरफेस को फिनिशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इज़ टैपिंग। टैपिंग बेसिकली ऑपरेशन होता है इंटरनल थ्रेड्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। तो चूड़ियाँ जिसको बोलते हैं आप मिस्त्री की लैंग्वेज में, लेमैन की लैंग्वेज में, ठीक है ना। और जो टूल यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड टैप, TAP टैप, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, इस पर छोटे छोटे स्क्रूज बने हुए हैं। तो हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं,
ये जो हमने एक होल प्रोड्यूस किया है 14 mm डायमीटर का, ठीक है, इसके अंदर वाले सरफेस पर हम थ्रेड्स काटना चाह रहे हैं, डबल लाइंस जो दिखाई हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 14 mm डायमीटर का होल लिया और एक टैप लिया टूल इंटरनल थ्रेड्स प्रोड्यूस करने के लिए, M16 यानी कि मीट्रिक सिस्टम में ये M16, ठीक है ना। और इसको हमने इस होल में सर्कुलेट करवाया है ताकि इसके अंदर M16 के थ्रेड्स प्रोड्यूस हो सकें, पूरी डेप्थ तक दिखा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ डेप्थ पर भी कर सकते हैं, पूरी डेप्थ में भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम टैपिंग बोलते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग इंटरनल थ्रेड्स विद द हेल्प ऑफ ए टैप, ठीक है ना। तो टैप हमारा, मान लीजिए हमें इस जॉब में कोई स्क्रू फिट करना है यहाँ पर, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें थ्रेड्स बनाने पड़ेंगे। तो ये थ्रेड्स बनाने के तरीके को, प्रोसेस को हम टैपिंग बोलते हैं, और जिस टूल को यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ए टैप, ठीक है ना। तो टैप बेसिकली, ए टैप इज़ ए फ्लूटेड थ्रेड टूल यूज फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड्स, ठीक है ना। तो ये हमारा टैप जो है मैनुअली भी कर सकते हैं और ड्रिलिंग मशीन पे भी कर सकते हैं। डायमीटर पे डिपेंड करता है कि कितने डायमीटर के हमने थ्रेड्स प्रोड्यूस करने, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली कि हमने कोई होल बनाया है ड्रिलिंग मशीन से, ठीक है ना, और उस होल को हम परफेक्टली स्मूथ बनाना चाह रहे हैं, उसकी फिनिशिंग इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो एक कप शेप का ग्राइंडिंग व्हील आता है, वो ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल पे फिट करके उससे हम होल्स के इंटरनल सरफेस की फिनिशिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज ट्री पैनिंग। ट्री पैनिंग बेसिकली एक सर्कुलर होल कटिंग ऑपरेशन है। मान लीजिए हमारे पास एक शीट है जिससे हमारी ये ट्रंक पेटी वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। इस शीट में हमसे 60 mm डायमीटर का होल प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम 60 mm डायमीटर का ड्रिल यूज़ करें, बट दैट विल बी टू कॉस्टली, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका क्या है, ट्री पैनिंग प्रोसेस से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये फिगर में आप देख रहे हैं कि एक स्पिंडल है हमारा, ठीक है। इस स्पिंडल के ऊपर एक प्लेट लगाकर हमने बोरिंग टूल की तरह ये सिंगल पॉइंट टूल्स यूज़ किए हुए हैं, 2, ठीक है ना, और इसको ऐसे घुमा देते हैं अबाउट दी सेंटर, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, शीट हमारी कट जाती है, कुछ इस तरह से होल प्रोड्यूस हो जाएगा बड़ा 60 mm से 60 mm डायमीटर का। जनरली हम ये प्रोसेस जो है कॉस्ट कटिंग के लिए करते हैं कि हमें ज़्यादा डायमीटर से 50 mm डायमीटर से ज़्यादा बड़े होल्स बनाने हैं पतली शीट्स में, थिन शीट्स में, तो इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो बफिंग ऑपरेशन ही हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन जो है, ये बफिंग ऑपरेशन हमारा बफिंग व्हील की हेल्प से यूज़ किया जाता है। इसका काम भी हमारा जो होता है कि होल्स के इंटरनल सरफेस की फिनिशिंग को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना, और ये टूल यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड बफिंग टूल। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ कोर ड्रिलिंग। कोर का नाम हमने सुना था कास्टिंग में, ठीक है ना। तो कोर ड्रिलिंग मतलब हमें इंटरनल होल्स प्रोड्यूस करने के लिए, सिंडिकल होल्स प्रोड्यूस करने के लिए हमने कोर यूज़ करी थी, और it can be defined as the operation of enlarging an already existing hole with the help of a boring tool। यानी कि बोरिंग की तरह ही है ये कोर ड्रिलिंग, ठीक है ना। तो कास्टिंग से हमने छोटा हो डायमीटर का, कम डायमीटर का होल बनाया और इस बोरिंग टूल से हमने उसका कोर का डायमीटर इम्प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज स्टेप ड्रिलिंग। स्टेप मतलब स्टेप्स बनाने हैं कि 2 डिफरेंट डेप्थ्स पे डिफरेंट डायमीटर के होल्स प्रोड्यूस करने हैं। देखिए नीचे वाली साइड पे कम डायमीटर का है, ऊपर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो व्हेन ए होल ऑफ 2 or more डायमीटर इज कट बाय 1 ड्रिल, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड स्टेप ड्रिलिंग। तो मल्टीपल डायमीटर ड्रिल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें स्टेप ड्रिलिंग के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्रिलिंग ऑपरेशंस। Very important questions from the final paper point of view. I hope you have understand it. Thank you. Meet you in the next lecture.